Namaste everyone, welcome back to the new video. Today we will learn different methods of causality assessment. Before starting the methods of causality assessment, we will start with the basics of causality. We can understand causality by taking an example. Let's start with it. Suppose patient administered zidovudine. Here I have taken the example of zidovudine because although zidovudine is FDA approved, but it's no longer used in the treatment for HIV. So patient administered zidovudine. After administration of zidovudine, patient started feeling stomach pain, heartburn, headache, and constipation. These are not the intended effect. These are the unwanted effect. So it's called as adverse event. Here, what happens? Here, zidovudine is suspect drug because after administration of zidovudine, these are the symptoms patient started feeling these symptoms. So here, zidovudine is suspect drug and stomach pain, heartburn, constipation are adverse events. I am not saying adverse drug reaction. These are adverse event because still it's not clear that these are the symptoms are because of zidovudine. Got it? That's why it's in a process, so it's called as adverse event. So what is causality? Causality is relationship between suspect drug and adverse event. Causality is relationship between suspect drug and adverse event. Here what is suspect drug? Zidovudine is suspect drug and adverse events. These are the adverse events. So if causality is related to the drug, that means these all are the symptoms are happened because of zidovudine. Then it becomes adverse drug reaction. Let's see. Causality assessment. Clear? I think all of you are much clear with causality. It's the simplest definition of causality. So what is causality assessment? Causality assessments are tests to check whether adverse events are happened or because of suspect drug or not. So how do we check if the adverse events are happened because of the drug or not? We can check it by causality assessment tests. And there are different methods of causality assessments. So this is our today's topic. This is the basics of causality. Let's start with the causality assessment and its method. Causality assessment is the assessment of relationship between the treatment and incidence of an adverse event. Causality assessment मतलब सस्पेक्ट ड्रग और जो एडवर्स इवेंट है इनके बीच के रिलेशन को इवेल्युएट करना मतलब कॉजलिटी असेसमेंट. यानी कि जो भी एडवर्स इवेंट पेशेंट ने फील किए वो एडवर्स इवेंट सस्पेक्ट ड्रग की वजह से ही हुए है या नहीं ये चेक करना. इसके लिए कॉजलिटी असेसमेंट की मेथड्स दी है. It helps to evaluate that whether the particular treatment due to which an adverse event has occurred is related with the suspect drug or not. What are the objectives of causality assessment? To set up relationship between suspect drug and adverse event. Second, plays an important part of evaluating adverse drug reaction reports for regulatory purposes and early warning systems. Third, detection of signals. Methods of causality assessment are classified into three categories, which are those: first, expert judgment, which includes Swedish method by Wilhelm. Next, UMC. UMC. UMC causality assessment criteria. What is UMC? UMC is Uppsala Monitoring Center. Uppsala Monitoring Center is in Sweden. It's a global collaborative center of WHO. उपसला मॉनिटरिंग सेंटर में हर एक रिस्पेक्टिव कंट्री का जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स होता है वो हर एक कंट्री अपना सब डेटाबेस हो, सेफ्टी रिपोर्ट हो, सब वो उपसला मॉनिटरिंग सेंटर में सबमिट करते हैं. नेक्स्ट, एल्गोरिदम्स. उसमें कौन सी मेथड्स आते हैं? डैंगमॉस फ्रेंच मेथड, क्रेमर मेथड, नारंजो स्केल, ड्रग इंट्रैक्शन प्रोबेबिलिटी स्केल्स. थर्ड, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स. उसमें आते हैं ऑस्ट्रेलियन मेथड. नेक्स्ट, बेजियन एडवर्स रिएक्शन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स बार्डी. इसमें से दो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड्स हम देखेंगे. एल्गोरिदम में जो नारंजो स्केल्स है वो देखेंगे. नारंजो स्केल
Naranjo scale based on 10 questions to determine whether an adverse drug reaction is actually due to the therapeutic drug rather than the other factors result. These answers are assigned by a score termed as definite when the total score is greater than or equal to 9, probable when total score is between 5 to 8, possible when total score is between 1 to 4, and doubtful when total score is less than or equal to 0. नारंजो स्केल में 10 क्वेश्चन दिए, हर एक क्वेश्चन का येस नो और डोंट नो में आंसर देना होता है. उसके बाद जो टोटल स्कोर आएगा उस हिसाब से अगर टोटल स्कोर अगर 9 और 9 के ऊपर आया तो इसका मतलब कि उसी सस्पेक्ट ड्रग की वजह से एडवर्स रिएक्शन हुई है, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गई है. प्रोबेबल है मतलब अगर स्कोर 5 to 8 के बीच में आया तो प्रोबेबल मतलब हाई चांसेस है कि उसी सस्पेक्ट ड्रग की वजह से एडवर्स रिएक्शन हुई. पॉसिबल अगर 1 to 4 आया तो ये हो भी सकता कि उसकी वजह से ना हो. और डाउटफुल मतलब लगभग नहीं, उस ड्रग की वजह से एडवर्स रिएक्शन नहीं हुई. तो वो कौन से 10 क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन, आर देयर प्रीवियस कंक्लूजन रिपोर्ट्स ऑन दिस रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के पहले भी कोई रिपोर्ट है या नहीं. नेक्स्ट, डिड एडवर्स इवेंट अपियर आफ्टर द सस्पेक्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सस्पेक्ट ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद एडवर्स रिएक्शन आई या नहीं. नेक्स्ट, डिड द AR इम्प्रूव व्हेन द ड्रग वाज डिसकंटिन्यूड, इसका मतलब अगर ड्रग विड्रॉल किया, जो ट्रीटमेंट चालू है वो ट्रीटमेंट चालू होने के बाद एडवर्स रिएक्शन आई, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट विड्रॉ किया मतलब डिसकंटिन्यू किया, उसके बाद AR इम्प्रूव हुआ या नहीं. नेक्स्ट, डिड द AR रीअपियर व्हेन द ड्रग वाज रीएडमिनिस्टर्ड, ड्रग विड्रॉल करने के बाद फिर से अगर ड्रग चालू किया मतलब रीएडमिनिस्टर्ड किया, उसे कहते हैं रीचैलेंज, और विड्रॉल को कहते हैं डी चैलेंज. फिर से रीएडमिनिस्टर्ड किया तो AR का रिस्पॉन्स क्या था, मतलब वापस AR रीअपियर हुआ या नहीं हुआ. नेक्स्ट, आर देयर अल्टरनेट कॉजेस अदर देन द ड्रग दैट कुड सोलली हैव कॉज द रिएक्शन, सस्पेक्ट ड्रग के अलावा और कोई कॉज हो सकता है क्या. नेक्स्ट, डिड द रिएक्शन रीअपियर व्हेन अ प्लासिबो वाज गिवन, व्हेन प्लासिबो अगर ड्रग दिया उसके बाद अगर रिएक्शन रीअपियर हुआ या नहीं. नेक्स्ट, वाज द ड्रग डिटेक्टेड इन द ब्लड इन अ कॉन्सेंट्रेशन नोन टू बी टॉक्सिक, मतलब ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन टॉक्सिक है या नहीं, मतलब ज़्यादा है या नहीं. नेक्स्ट, वाज द रिएक्शन मोर सीवियर व्हेन द डोज वाज इंक्रीज और लेस सीवियर व्हेन द डोज वाज डिक्रीज, डोज बढ़ाने के बाद जो एडवर्स रिएक्शन है वो इंक्रीज हुआ मतलब सीवियर हुआ, या डोज लेस करने के बाद वो रिएक्शन डिक्रीज हुआ, ये चेक करना. उसके बाद, डिड द पेशेंट हैव सिमिलर रिएक्शन टू द सेम और सिमिलर ड्रग्स इन एनी प्रीवियस एक्सपोजर, मतलब इससे पहले भी अगर सेम ड्रग का कंटेंट हो, वो ड्रग या उसकी जैसा सेम कंटेंट वाला ड्रग सेम रिएक्शन हुआ था या नहीं हुआ था. एंड लास्ट, वाज द एडवर्स इवेंट कन्फर्म बाय द ऑब्जेक्टिव एविडेंस, जो एडवर्स इवेंट हुआ है वो एविडेंस के साथ कन्फर्म हुआ या सिर्फ ओरली दिया गया है. ये 10 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के टोटल करने, अगर टोटल 9 या उसके बराबर आया, 9 से ज़्यादा या 9 आया तो डेफिनेट उसी सस्पेक्ट ड्रग की वजह से वो एडवर्स रिएक्शन हुआ है. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स में से बार्डी मतलब बेजियन एडवर्स रिएक्शन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट. सो व्हाट इज इट? It is established to overcome limitations aligned with expert judgment and algorithm. एक्सपर्ट जजमेंट एंड एल्गोरिदम की जो खामियां हैं उसे ओवरकम करने के लिए प्रोबेबिलिस्टिक मेथड तैयार की. It is used for calculating the odds of specific drug by comparing adverse event with an alternative cause, and these odds are known as posterior odds. इन सिंपल लैंग्वेज, ऑड्स मतलब प्रोबेबिलिटी पकड़ो, किसी भी दो चीज़ की कंपेयर करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे ऑड्स कहेंगे. तो एडवर्स इवेंट को हम कंपेयर करेंगे अल्टरनेट कॉज के साथ, मतलब अगर साइमल्टेनियसली कोई और ड्रग लिया है वो ड्रग. हाउ टू कैलकुलेट दोज पोस्टीरियर ऑड्स? पोस्टीरियर ऑड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग 6 असेसमेंट सबसेट्स विच आर दोज. One deals with the background epidemiologic or clinical trial information which is called as prior odds. फर्स्ट है प्रायर ऑड्स. प्रायर ऑड्स में उस ड्रग की सब क्लिनिकल ट्रायल इन्फॉर्मेशन, उस पेशेंट की क्लिनिकल ट्रायल की जो इन्फॉर्मेशन है
उस ड्रग की सब इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में आएगी प्रायर ऑर्ड्स में। और बाकी के 5 कौन से? पेशेंट हिस्ट्री डिनोटेड बाय HI, टाइमिंग ऑफ द एडवर्स इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिनोटेड बाय TI, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एडवर्स इवेंट डिनोटेड बाय CH, ड्रग डी चैलेंज मतलब डी चैलेंज मतलब अगर कोई ट्रीटमेंट चालू है किसी पेशेंट की, अगर उसे एडवर्स रिएक्शन हुआ, कोई भी एडवर्स रिएक्शन हुआ, उसके बाद वो ड्रग का विड्रॉल करना मतलब डी चैलेंज। और विड्रॉल करने के बाद ये चेक करेंगे कि वापस विड्रॉल करने के बाद एडवर्स रिएक्शन है या नहीं है या चला गया, उसके बाद वापस अगर ड्रग चालू करेंगे तो उसे कहेंगे री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब री चैलेंज। सो ड्रग री चैलेंज RE एंड सस्पेक्टेड कॉजल ड्रग S से नोट करेंगे। ये फॉर्मूला है PSO मीन्स पोस्टीरियर ऑर्ड्स इज इक्वल टू प्रायर ऑर्ड इनटू हिस्ट्री A, timing, characteristics, re-challenge and re-challenge. The Bayesian approach can be implemented as a spreadsheet program either on a paper or a computer. जो भी रिजल्ट आएगा वो स्प्रेडशीट में, एक तो पेपर में भी या कंप्यूटर में भी हम ले सकते। इट कैलकुलेट्स एंड प्रोवाइड्स इंस्टेंट न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल फीडबैक अबाउट द कॉजेलिटी। थैंक यू।